A very good morning, class 5th. How are you? So, I have sent you the revision of the chapter the poem, The Story of the Fidgety Philip. But only 2 students have sent me. Why so? You don't want to revise the lesson? आपको रिवाइज नहीं करना लेसन. मैम ने आपको सारा लेसन समझाया, पोएम समझाई, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आई एक्सप्लेन्ड यू and next day I sent you the revision sheet and only 2 students sent me. Why so? This is really very bad 5th class. आप लोग रिवाइज नहीं करना चाहते? मार्च में आपके पेपर आने वाले हैं तो आप कैसे करेंगे? मैम तो आपको रिवाइज ही करवा रही हैं, मैम आपको दोबारा समझा रही हैं, दोबारा आपके लिए एक मैंने स्पेशल शीट बनाई, प्रैक्टिस शीट बनाई ताकि बच्चे इसी बहाने लर्न कर लेंगे. और आप लोगों ने किसी ने भी 2 बच्चों को छोड़ के किसी ने कोई भी शीट नहीं भेजी. इज इट अ गुड थिंग? अच्छी बात है ये. 5th क्लास में ही अभी से आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैम की बात नहीं सुन रहे हैं आप. It is really very bad. So from now onwards, if I send you some sheet, revision sheet or a practice sheet, so all of you listen carefully. 5th क्लास में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे शीट, आंसर शीट नहीं भेजेगा. बच्चे नंबर फिर आप ही के कम आएंगे. मैम आपको रिवाइज करवा रही है, मैम अपनी ड्यूटी कर रही है. जिन बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं वो इस रिवीजन टाइम में अपने क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं. इजंट इट? जो भी काम उनका रह गया है जब मैं रिवाइज कराऊंगी तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज कराऊंगी, स्टोरी की समरी बताऊंगी, ग्रामर के भी हम करेंगे रिविजन्स. तो व्हेनेवर आई एम सेंडिंग यू प्रैक्टिस शीट, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू सेंड मी द आंसर शीट्स. Is it clear to class, all of you? Is it clear? 5th A and B. I want answer sheets from all of you whenever I am sending the question or practice sheets to you. You all are supposed to solve it and send it back to me. Is it clear? Yes. So we have finished with the explanation of that poem. So today is 18th of Jan. (2021) and it is Monday. So we will revise the question answers for you again. And one more thing I want to do is that there are some mistakes in this. So I want you to rectify it. आप लोग ये बच्चे पेज निकालो, take out your page number 75 in your reader book and rectify these. जो एंटोनिम्स हैं, यहाँ पे जो सेकंड एंटोनिम है वो उसको आपने कट कर लेना है. शेप किसी का भी मैच नहीं हो रहा है. आपने यहाँ ऑनर लिख लेना है, HONOUR, ऑनर. और ये है आपके 12th का डिसग्रेस, ऑनर. ये आप ठीक कर लीजिए. और I can just tell you verbally, like synonyms में 12th dishonor, 1st small, 4th serious, 6th mischievous, 5th annoyed. You write down the numbers, okay? ऊपर सबसे पहले synonyms पे आ जाइए. synonyms, dishonor number 12 लिखिए वहाँ पे. small number 1, serious 4, cross annoyed number 5, naughty mischievous. Means mischievous. Synonym means the words have been having a similar meaning. Restless, it means fidgety. Rude means discourteous. Change it. Rude means discourteous, not dishonor. यहाँ पे ठीक कीजिए आप. 8 number, rude is discourteous, not dishonor. Change it. Might means strength. Worse is bad. Frown means scowling,
जब आप गुस्से में बोलते हैं. Disgrace, dishonor. Number 12 here. Do this thing, rectify it, then come to the antonyms. First one is unable. Number 2 लिख लीजिए उस पर. Able, unable. Number 2. Then cut the word shape. Shape को काट दीजिए और वहाँ पे लिखिए honor. Synonyms and antonyms. ये आप ठीक कर लीजिए. पेज 75 पे है ये. देखिए, डिसऑनर. दिस इज नंबर 12. स्मॉल. नंबर 1 सीरियस. is number 4. Mischievous is number 5. Mischievous is number 6. Fifth is annoyed. Third is conduct oneself. Seventh is fidgety. Then 8th is discourteous. 10th. 10th is bad. 9th is strength. Then second number and 11 number. Both are left. Second is capable. And the 11th is scowl. Now you write down the antonyms. Unable means number 2. शेप को आपने कट कर देना है. ये जो शेप लिखा है ना, इसको आप कट कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए ऑनर. दिस इज नंबर 12. हैप्पी is number 5. Unimportant. Number 4. Misbehave. Misbehave is number 3. Good. And next one is weakness. Good is number 10. Weakness is number 9. Relaxed. Relaxed is number 7. Polite. 8. Well behaved. Well behaved means 6 number. Then we come to smile. 11 number. And then big is number 1. तो जो भी गलत है अभी ठीक कर लो. मैंने दोबारा करवाया है. यहाँ ऑन शेप को आपने कट कर देना है, ऑनर लिखना है. ये मैच नहीं हो रहा था किसी से भी, राइट? सो रेक्टिफाई इट इमीडिएटली इन योर बुक्स. एंड आगे से अगर मैम कोई भी आपको प्रैक्टिस शीट या रिवीजन शीट भेजती है तो आपको उसी दिन जितना भी आपको टाइम दिया गया है आपने वापस आंसर शीट्स भेजनी है सॉल्व करके. इज इट क्लियर क्लास 5th? A and B both. Okay. Now I'm going to rub this. So all of you have, your ma'am has, Jayashree ma'am has already explained you each and everything, but
Now I am going to teach you for next 3 months. So I will just give a briefing of the answer questions, right? So the first question was, what do Philip parents want him to do on the table? What does his parents want him to do? क्या चाहते थे वो? Yes, what they wanted? So what they wants him to do on the table? Philip parents wanted him to sit still on the table, or they want him to be a little gentleman, behave in a proper manner. I don't know what your teacher has made you write that answer, but the answer can be either his parents want him to sit still on the table or to become a little gentleman. Now the second question is, why does his mother get cross with him? His mother get cross with him when he was when he was tilting up his chair like a rocking horse. At that time, his mother got cross with him. Why does Philip scream? Scream क्यों किया था Philip ने? The Philip screamed when his chair was falling down, and at that time he just couldn't make the balance of his chair and his chair was about to fall. At that time he screamed. So when his chair was about to fall, at that time Philip screamed. What does the mother see tumbling down? The mother see से जो see है ना, जो verb है हमारा वो change हो जाता है जब हम आंसर में लिखते हैं, तो बन जाएगा the mother saw all the glasses, plates, knives, forks, as well as the tablecloth tumbling down, right? The next is, what has covered Philip? किससे cover हो गया था Philip जब वो नीचे गिरा? Tablecloth से. Why is the dining table bare? Dining table is bare because all the things which were laid on the table, they have fallen down. So we have revised the question answers and I have given you the revision sheet also. So today only you can send it to me. जिसने नहीं भेजी है 5th क्लास, उसको सॉल्व करो. आपके लिए है वो रिवीजन, मैम के लिए नहीं है. मैम अगर आपको रिवीजन भेज रही है तो इसमें आपका फ़ायदा है, मैम का फ़ायदा नहीं है. मैम आपको रिवाइज करवाना चाह रही है, तो आप जिसने भी नहीं भेजा है फटाफट से सॉल्व करके मैम को भेज दो. Now we come to the next lesson, the adventure of the blue carbuncle. So you have read the story, I know you have read the story. So I will just explain you in brief. Okay. मैं आपको इसकी स्टोरी थोड़ी सी बता दूंगी. The adventure of the blue carbuncle. Now this story is by Sherlock Holmes. Who was Sherlock Holmes? He was a very famous detective, Sherlock Holmes. He was used to solve the mysteries. So this story is having a mystery in this. And it is a story about a blue carbuncle. Carbuncle is a gemstone. आप एक precious stone होता है, उसको भी आप carbuncle कह सकते हैं. So this story is about that gemstone which has been stolen. So in this there is so many characters. So one is Sherlock Holmes and his friend who called him. I called on my friend Sherlock Holmes just after Christmas to wish him. And when he enters the room, what he finds that he is dressed in a purple dressing gown. उसने एक purple color का dressing gown पहना हुआ है.
and he's relaxing on the sofa. Beside the sofa was a chair on which hung a battered old hat. और सोफे के साइड पे, चेयर पे एक पुरानी सी डैमेज्ड हैट रखी थी. होम्स मैग्नीफाइंग ग्लास एंड फोर्सेप्स ले ऑन द सीट ऑफ द चेयर. और होम्स की मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बच्चे ये वाला, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, जिससे आप चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं. इसमें लेंस लगे रहते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द मैग्नीफाइंग ग्लास. तो वहीं पे उसके फॉर्सेप्स होते हैं, एक ट्वीजर्स टाइप चीज़ होती है जो कि डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर्सेप्स बोलते हैं, ट्वीजर्स को बोलते हैं. मोस्टली ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फॉर्सेप्स, जो उनके कटिंग वटिंग के, डाइसेक्टिंग के, जो उनके व्हाट कैन आई से मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स जो थिंग्स होती हैं जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन के टाइम काम आती हैं, उनमें से एक को हम फॉर्सेप्स कहते हैं. ठीक है, ट्वीजर्स जैसी होती हैं. ट्वीजर्स मीन्स सिजर्स जैसी, लाइक दिस. इट इज लाइक दिस. तो ये यहाँ से इसको जब आप दबाएंगे तो ये सिजर्स की तरह ऐसे ऐसे चलती है. सो दिस इज कॉल्ड ट्वीजर्स एंड दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, तो मैंने आपको बना के दिखा दिया तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो वो देखता है कि चेयर पे शेरलॉक होम्स का मैग्नीफाइंग ग्लास और एक ट्वीजर्स फॉर्सेप्स पड़े हैं. तो द मैन हु एंटर्ड ही आस्क्ड कि व्हाट आर यू डूइंग, आर यू एग्जामिनिंग दिस हैट, कि तुम क्या ये हैट देख रहे हो. तो he says that if you are, I hope I'm not interrupting you, I just came by to wish you. तो जो the person who came in, he said कि I'm sorry if you are busy, but I was just going by the side of your house, so I just came in to just wish you Merry Christmas. So the Sherlock Holmes says that no, there's nothing like that. I'm not getting disturbed, so you are most welcome. So this is the hat of the Commissioner Peterson. Peterson, the commissioner, this is his hat. Really, this is his hat. No, his hat actually he found it. So that person, he asked कि ये Peterson की hat है. तो Sherlock Holmes उसको बोलता है कि no, not exactly his hat. Actually, he has found this hat. कि उसको ये hat कहीं मिली है. We do not know the owner of this hat. हमें इस hat के owner का नहीं मालूम है. Actually, Peterson घर, he was returning home, and there he witnessed a quarrel between a tall man and some rough man. So he said कि when he was returning home, so he witnessed means उसने एक witness होता है किसी चीज़ को खुद अपनी आँख से देखना, तो आई विटनेस जिसे हम बोलते हैं. तो रास्ते में when he was returning home, so there he witnessed a quarrel between a tall man and some rough man. And when they saw Peterson, because he was a like commissioner, police in uniform, the man in uniform, so they both ran. तो दोनों तरफ के जो लोग थे, and that tall man was wearing this hat, and he was having a Christmas goose in his hand, means a piece of meat in his hand. When those rough men attacked him, he tried to defend himself, and when they saw Peterson, they just ran away. So the Peterson has a dead goose and this hat. तो Peterson को देख के दोनों भाग गई पार्टीज, और hat और वो goose, it's a क्रिसमस पे बनता है इनके, टर्की बनाते हैं लोग. It is a, you can call it a ham. Ham is a meat from a pig. So वो क्रिसमस पे बनता है, इनका goose होता है एक स्पेशल. वो लोग वो ये बनाते हैं क्रिसमस पे, टर्की बोलते हैं उसको. तो वो जो डेड गूस था वो भी उसके वहीं रह गया, और वो हैट भी वहीं छोड़ के वो भाग गए. Can't Peterson just take the goose to its owner? I asked, finding the matter quite simple. तो
मैंने पूछा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि गूस को उसके ओनर को दे दो, क्या पीटरसन जो है ही कांट टेक द गूस टू हिज ओनर. तो ही सेज देयर लाइज अ प्रॉब्लम बिकॉज Watson. So it is clear now that the person who entered the room, his name was Watson, right? So he says, Sherlock Holmes tells him that Mr. Henry Baker is printed on the card and that is tied on the bird's leg, and the initials of the same name are also printed on the lining of the hat. So he says कि थी तो ये उस टॉल मैन के पास, ठीक है, और इसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है मिस्टर हेनरी बेकर, और जो डेड गूज है वो बर्ड की लेग से भी एक वो बंधा हुआ है, उसके ऊपर भी नाम लिखा हुआ है हेनरी बेकर. तो मीन्स, और हेनरी बेकर तो बहुत सारे होंगे लंदन में, तो वो कहता है कि बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इतने सारे हेनरी बेकर्स में से कौन सा ओरिजिनल है जिसकी ये हैट है या जिसका ये गूज है, how can we find out? It is difficult. So he says, yes, that is difficult. Yes, there must be thousands of Henry Bakers in London. So what will Peterson do now? He has decided. So Peterson took the hat and he gave it to Sherlock Holmes to just find out that who the owner is. That is why. So he has decided to cook the goose for dinner and has left the hat with me. So he tells the Watson. Who tells? Sherlock Holmes. He tells the Watson that the Peterson has taken the bird for cooking, क्योंकि it was a dead goose, तो वो घर ले गया डिनर बनाने के लिए, और ये हैट वो मुझे दे गया है कि इसको फाइंड आउट करो कि इसका ओनर कौन है, ताकि हम इसके ओनर को ये हैट वापस कर सकें. So knowing that even the smallest mystery intrigues me, क्योंकि उसको मालूम था कि मुझे मिस्ट्री सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पीटरसन मुझे ये हैट दे गया टू फाइंड आउट दैट हु इज द ओनर ऑफ दिस हैट. टेल मी वॉटसन, व्हाट कैन यू डिड्यूस अबाउट द मैन फ्रॉम दिस हैट? सो शर्लक होम्स आस्क्ड द वॉटसन कि क्या तुम बता सकते हो हैट देख के, तुम्हें क्या लगता है कि इसका ओनर कैसा होगा? So I took the tattered object in my hand and turned it around, and it was dusty, spotty, and there were some ink on it, and that looked like an attempt to hide the discolored patches. तो उसने हैट ली हाथ में और उसको ऐसे देखने लगा. बड़ी पुरानी सी थी, थोड़ी सी डैमेज्ड भी थी, डस्टी थी, मिट्टी थी उस पर, और कुछ स्पॉट्स लगे हुए थे उस पर इंक के. तो वॉटसन को कुछ भी उसमें पर्टिकुलर नहीं लगा, तो उसने बोला कि मुझे तो इसमें कुछ भी एज सच कुछ ऐसा लगा नहीं जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं. तो शर्लक होम्स मेरी वॉटसन की तरफ देखता है और उसको बताता है, पर मैं इस हैट को देख के आपको ये बता सकता हूँ कि इसका ओनर कैसा होगा. तो वॉटसन बड़ा हैरान होता है. ही सेड, ओके, सो व्हाट कैन यू डिड्यूस आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस हैट? सो ही सेज दैट द ओनर इज़ फेयरली वेल टू डू. अच्छा वेल टू डू फैमिली से है, मीन्स अच्छे घर से है, बट हैज़ लॉस्ट हिज फॉर्चून इन लास्ट 3 years. पर पिछले 2-3 सालों से उसने अपनी काफ़ी वेल्थ जो है लूज़ करी है, मीन्स उसके काफ़ी पैसे, उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी लूज़ हो गई है, और वो मिडिल एज्ड है. लास्ट थिंग, टेक्स प्राइड इन हिज अपीयरेंस, कि उसको अपने आप को स्मार्ट दिखाने में अच्छा लगता है. एंड लास्ट थिंग ही सेज, हिज वाइफ डज नॉट लव हिम एनी मोर. और लास्ट में वो ये भी बोल देता है कि जो उसकी वाइफ है वो उससे प्यार नहीं करती है. हाउ कैन यू से दैट? आई आस्क्ड शॉक्ड. तो वॉटसन बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं ये सब, आपने कैसे? तो उसने बोला, द स्टाइल ऑफ द हैट इज़ 3 years old. मीन्स जो ये स्टाइल है हैट का, ये अभी नहीं चलता है, 3 years पहले चलता था, ठीक है. सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव वन, और ये उस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 3 साल पहले. दूसरी बात, इसमें से ग्रे कलर के बाल मुझे मिले हैं, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, मीन्स एक बाल आधा जो है उसको ग्रे कलर के बाल मिले हैं. दैट मीन्स दैट पर्सन हु इज द ओनर इज मिडिल एज्ड, ठीक है. देन देर इज़ अ डिस्टिंक्ट ऑर्डर ऑफ लाइम क्रीम, और इस हैट में से एक टिपिकल लाइम क्रीम की स्मेल आ रही है. ऑर्डर मीन्स स्मेल, replied the Holmes calmly. And what about his wife not caring about him anymore? So he says कि अच्छा, ये तो मैंने मान लिया, ठीक है, but how can you say that his wife does not love him? So he says that
यू कैन सी एट द हैट इट इज़ वेरी डस्टी, इट इज़ वेरी स्पॉटी, कलरलेस है, इस पर स्पॉट्स भी लगे हुए, इतनी मिट्टी है। तो मीन्स अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है तो वो उसको ऐसी गंदी हैट, डस्टी हैट पहनने को नहीं देगी, वो उसको बिल्कुल नई हैट ला के देगी। दैट मीन्स ये पुरानी और डस्टी और स्पॉटी हैट पहन रहा है, डिसकलर्ड हैट पहन रहा है, दैट मीन्स हिज वाइफ डज नॉट केयर फॉर हिम एनी मोर, कि उसकी वाइफ अब बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखती है। So you are so clever, my friend. So Watson was very much impressed by his answer. He said, very smart. But it looks like no crime has been committed. But फिर भी वो कहता है, वॉटसन कहता है कि बट इसमें मुझे कोई क्राइम नज़र नहीं आता, हैट से क्या रिलेशन हुआ क्राइम का। इतनी देर में क्या होता है, दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है एंड पीटरसन स्टेप्ड इनसाइड। पीटरसन जो हैट दे के गया था ना, जो वो था कमिश्नर था, जो गूज ले गया था अपने घर बनाने के लिए, और हैट दे गया था होम्स को कि यू जस्ट सॉल्व द मिस्ट्री कि इसका ओनर कौन है। तो वो अंदर आता है फटाफट दरवाज़ा ऐसे खोल के। ही वॉज फ्लश्ड विद इन एक्साइटमेंट दैट गूज होम्स, लुक वॉट माई वाइफ फाउंड इन इट। तो वो गूज ले गया था ना अपने घर में डिनर में बनाने के लिए। तो जब उसकी वाइफ ने गूज को काटा तो उसमें से क्या निकला, एक बहुत बड़ा जेम स्टोन, कार्बंकल, राइट। सो ही सेज कि लुक what my wife has found from it. We stared at the blue diamond that Peterson held out to show us. तो ब्लू कलर का जेमस्टोन था, इतना बड़ा, और हम दोनों उसको ऐसे करके देख रहे थे। It is the Countess of Marker's blue carbuncle. So that person says, I said excitedly as Holmes held the diamond. तो वॉटसन ने उसको देखा तो वॉटसन ने बोला कि ये तो काउंटेस का है। काउंटेस मीन्स वहाँ की जो नोबल की वाइफ होगी, काउंटेस उसको बोलते हैं। काउंटेस मीन्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ नोबल्स और द ड्यूक्स। यूरोपियन कंट्रीज में इनको बोला जाता है हैज़ अ। तो कहता कि ये तो उसके क्राउन का लग रहा है मुझे, या रिंग में होगा या किसी ज्वेल में होगा, ये काउंटेस का है। So I said excitedly, yes, the reward of 1,000 pounds will go to the one who finds it. It was stolen on December 22, and John Horner, a plumber who was accused of the theft, he is under arrest right now, added Holmes. So Holmes said yes, ये स्टील हुआ था, ये 22 दिसंबर को स्टील हुआ था, और इसको ढूंढने वाले को रिवार्ड भी मिलना था, और इसको एक प्लम्बर था, उसका नाम था जॉन हॉर्नर, उसने स्टील किया था वहाँ से। तो ऐसे करके ये लोग, ही टेल्स कि ये तो एक प्लम्बर ने चोरी किया था। फिर उस प्लम्बर से वो कहाँ कहाँ गया और कैसे होम्स ने वो पूरी मिस्ट्री सॉल्व की। तो प्लम्बर क्या करता है, प्लम्बर को बुलाया होता है उन्होंने वहाँ पे कुछ ठीक करने के लिए। तो जेम्स राइडर, हॉर्नर हैड बीन कॉल्ड बाय द होटल अटेंडेंट, होम्स फिल्ड अप विद द डिटेल्स। होम्स को सारी डिटेल पता थी कि ये एक प्लम्बर गया था वहाँ काम करने और उसने ये स्टील किया था। सो नाउ वी हैव अ ज्वेल दैट केम फ्रॉम अ गूज। So he found that bureau open and jewel gone, and there was little doubt that John Horner was guilty, as he had a record of previous robberies also. So that plumber has stolen that jewel from that. So now he says that now we have this jewel from the, हमें तो ये गूज से मिला है, अब हम इसको कैसे इसका पता करें। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम एक एडवर्टिजमेंट देते हैं। एडवर्टिजमेंट देंगे तो जो भी हेनरी बेकर होगा, जिसकी की गूज होगी, वो डेफिनेटली हमसे मिलेगा आके। तो वो ऐसे ही करते हैं, एडवर्टिजमेंट देते हैं, और शाम को एक हेनरी बेकर उनसे मिलने आता है। वो बहुत टॉल और लार्ज मैन होता है। वो बताता है कि मैंने तो ये लॉटरी में जीता था, गूज, और वो इनका नाम बताता है कि कहाँ मैं पब में गया था, वहाँ से मैंने लॉटरी विन की थी और मुझे ये वहाँ से मिला था। अब ये लोग वहाँ पे इन में जाते हैं तो वहाँ पे वो एक पर्सन से मिलते हैं, उसका नाम होता है ब्रेकनरिज। तो उससे मिलने वहाँ पे एक छोटा सा आदमी आता है। तो होम्स उसको बहुत ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है, और उसको बोलता है कि
कि हम आपको बता सकते हैं उसके बारे में, जो ज्वेल आपका जो खोया है। तो वो आके ब्रैकेनब्रिज से मिलता है, जो छोटा सा शॉर्ट स्ट्रेचर्ड मैन होता है, तो उससे बात कर रहा होता है। तो होम्स उसको ध्यान से देख रहा होता है। तो फिर बाद में होम्स उस छोटे से जो मैन है, शॉर्ट मैन होता है, उसको बोलता है कि मीन्स वी कैन टेल यू समथिंग अबाउट दिस, सो वी कुड हेल्प यू अबाउट दैट। और वो उसे अपने साथ कार में बिठा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम अपना नाम बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना गलत नाम बताता है, और फिर जब पुलिस ये होम्स बोलता है कि यू जस्ट टेल मी योर रियल नेम, सो मीन्स ही सेड कि नाउ आई थिंक आई शुड नॉट स्पीक राइट। तो वो फिर सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि मेरा नाम जेम्स राइडर है, और जिसने वही प्लम्बर, राइट, जिसने वो चोरी किया था, बुलाया था ना उसको जेम्स राइडर टू फिक्स, his name is James Ryder and he is an head attendant at the hotel Cosmopolitan। तो वो बता देता है। और उसके बाद फिर वो ये भी बता देता है कि जो उसने क्या किया, उसकी जो सिस्टर थी वो उसको हमेशा क्रिसमस पे एक गूज देती थी बनाने के लिए। तो इसने क्या किया, उस छुपाने के लिए ना, उस गूज ज्वेल को, इतना बड़ा जो ज्वेल जो उसने चोरी किया था, उसने क्या किया, एक गूज के मुंह में डाल दिया और वो अंदर चला गया पेट में। और उसके बाद वो उसके हाथ से छूट गया गूज। हाथ से छूट के वो जाके ग्रुप में मीन्स मिल गया। तो उनको वो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसमें से कौन सा गूज है, और मेरी सिस्टर ने मुझे एज यूजुअल एक गूज दे दिया बनाने के लिए क्रिसमस पे। तो सो ही हैड किल्ड इट बिफोर टेकिंग इट टू द फ्रेंड्स हाउस। बट उसने देखा कि उसमें से तो वो जेमस्टोन नहीं निकला। तो इसलिए ही हैड रियलाइज दैट स्टोन वाज इन द क्रॉ ऑफ सम अदर गूज। तो इसलिए वो दोबारा उसके मिलने आया था होटल वाले से कि मुझे गूज चाहिए, वो स्टोन चाहिए, क्योंकि वो मैंने किसी गूज के नेक में से डाल दिया था। एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस ही सेज दैट he understands that now I am under arrest, means these persons have, they have just, I have means I have told everything about that, I have confessed that I have committed this crime, मैंने ये गलती की है, मैंने ही चुराया है। तो वो उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि प्लीज़ लेट मी गो, आई विल नॉट डू दिस अगेन। तो होम्स क्या करता है, उसको स्टर्नली देखता है और उसको घर से बाहर धक्का देके निकाल देता है, राइडर को। तो जो वॉटसन है वो बहुत हैरान होता है कि ये तुमने क्या किया। तो फिर उसको होम्स समझाता है कि देखो, वी हैव अ स्टोन, हॉर्नर विल बी रिलीज फ्रॉम द जेल, कि स्टोन तो हमें मिल ही गया है, और जो हॉर्नर है वो जेल में है ही। और अगर मैं इसको, क्राइम हमने सॉल्व कर ही लिया है, और अगर मैं अब राइडर को उसमें डाल देता हूँ, पुलिस को पकड़ा देता हूँ, तो हिल बी ए जेल बर्ड, उसको जेल हो जाएगी। और उसके बाद हो सकता है उसको लाइफ टर्म ही जेल में रहना पड़े, क्योंकि उसने चोरी भी बहुत बड़ी की है। एंड यू नो दैट वी आर इन द सीजन ऑफ फॉरगिवनेस। जब इनकी क्रिसमस होती है ना बच्चे, ये बहुत ऑस्पिशियस रहता है इनका सीज़न, ये कुछ सब अच्छा करते हैं। तो उस वक्त उनका सीज़न होता है फॉरगिव करने का, मीन सबको माफ़ करने का। अगर किसी ने गलती की है तो वो इस सीज़न में सबको माफ़ कर देते हैं। तो होम्स उसको बताता है कि मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि स्टोन हमें मिल चुका है, और जो हॉर्नर है वो भी, ही विल बी रिलीज फ्रॉम द जेल सून। और अगर मैं इसको जेल में भेज देता हूँ तो ये हो सकता है सारी ज़िंदगी इसको, फॉर लाइफ टर्म इसको इम्प्रिजनमेंट हो जाए, जो मैं अभी नहीं भेजना चाहता। क्यों? क्योंकि सीजन ऑफ फॉरगिवनेस चल रहा है, इसलिए तो मैंने इसे छोड़ दिया। एंड दिस इज हाउ ही solve this mystery. So in the next lecture we will discuss about the question answers as well as the exercise.